Right, children. So, in the previous class, I taught you about the crack cycle, what is the EMP pathway. EMP pathway says that how the glucose is added, and with the help of ATP, the energy of 2 ATP is charged, and then it is broken into a 3 carbon compound, that is pyruvate. And during this course, 4 ATPs are produced. Since 2 ATPs are spent and 4 ATPs are produced, so the net benefit are of 2 ATPs. So in that, at the end of the glycolysis or EMP pathway, at the end of the glycolysis or EMP pathway, what we had net, that is 2 ATPs and 2 pyruvates or pyruvic acid and 2 NADPH. That is easily there. 2 ATP का net benefit अपन को मिला, 2 pyruvates मिले and 2 what do you call it, NADH2. Okay, so these are the products we got, but there is still energy available in these two molecules. इसमें और इसमें energy है, so finally we had to get ATPs. We have the body has nothing to do with the pyruvate. Rather, pyruvate cannot be collected in the body because they are acid, and if they are acid, it will keep on collecting in the cell, and it will lower the pH and it will create other type of problem. So finally, we have to convert them into the carbon dioxide and water, which are least harmful substance, and they can be diffused out of the body time and time again. So that is the aim. Okay? So that is done in the aerobic respiration, and aerobic respiration is taking place in mitochondria. ठीक है, लेट अस सी, देखते हैं 14.4 में क्या लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन. मैं पूरी उसको नहीं पढ़ूंगा लाइन बाय लाइन, मैं आगे पढ़ाता हूं. दैट इज दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन. इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, अ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड जो है दैट टेक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ COA, coenzyme A, and it releases 2 hydrogen. Now hydrogen are released in the form of hydrogen ions. Hydrogen ions are very active. Okay, hydrogen itself is active, but hydrogen ions are also more active. So hydrogen ions cannot simply release into the cytoplasm. There should be some molecule which immediately grab it, which should be immediately taking it. So that molecule जो है वो यहाँ पे क्या है, NAD है. NAD will take this hydrogen and it will change into NADH2. And 1 carbon dioxide will release, and the 3 carbon pyruvic acid will change into 2 carbon compound acetyl coenzyme. So this is the carboxylation. क्या है इसके अंदर, pyruvates plus coenzyme A plus NAD will change into acetyl coenzyme A, और साथ में क्या निकलेंगे अपने पास, NADH2. ठीक है, so and coenzyme उसके साथ में ऐड हो गया. So this is the starter molecule which will be used in the Krebs cycle of T-cell. सर आपसे मैं शुरू से बोला था कि आप क्या है, आपका पीरियड में आज तक हो गया, कल आप क्या करना है, अपना पीरियड आपसे पहले वाला पीरियड जो है वो सुबह से चेंज करना. ठीक है, हमारी मुलाकात में तो सुबह का टेंशन होगा, कल से हाँ. ठीक है, तो ये अपना बना. तो अब ये जो है किसी साइकिल में या क्रैप साइकिल में जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्रैप साइकिल. तो ये एक्चुअली क्रैप साइकिल की बिगिनिंग थी. कौन क्रैप साइकिल पढ़ता है? Yesterday's class I explained you what is the difference between pathway and a cycle. Pathway is starting from one end and ending into something else. ठीक है, वो जो एंड प्रोडक्ट है वो वापस उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. वेयर इज द साइकिल, द प्रोसेस फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट एंड इट एंड्स अप देयर ओनली. तो हमारा ये जो है वो क्रैप साइकिल है. शुरू करते हैं यहाँ से, ये हमारा पायरुवेट आया, पायरुवेट व्हिच केम फ्रॉम द साइड ग्लाइकोलाइसिस, दैट जो अभी मैंने लिखा था वो चीज यहाँ पर लिखा हूँ. coenzyme A it will take, NAD it will take, and NAD will change into NADH2. तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ गया. ठीक है, और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में है. So 1 carbon is reduced. It was 3 carbon compound, now it will change into a 2 carbon compound, जिसका नाम है acetyl coenzyme. ठीक है, we have got oxaloacetic acid.
O double A. This is the 4 carbon compound. 4 carbon compound take 2 carbon compound and it change into citric acid. Citric acid will change into isocitric acid. Isocitric acid will change into a 5 carbon compound alpha ketobutyric acid. This 4 carbon compound will change into succinylcholine. So choline के इसके अंदर घुसेगा यहाँ से, ठीक है? Then it will change into fumaric acid, fumaric and then malic acid, no? Yes, malic acid and then fumaric is coming. ठीक है? यहाँ malic acid itself is 4 carbon compound and then it will change. Now यहाँ पे हमारे पास एक NADH2 आया, एक NADH2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा. NADH2 आपके बुक में isocitric acid में लिखा, ketobutyric acid से यहाँ आने वापस से एक NAD will change into NADH2. यहाँ पे जो है वो एक GTP में चेंज हो रहा है and choline में वापस बाहर आ जाएगा. The choline is added. And here FAD will change into FADH2. ठीक है? 1, 2, 3 एक NADH2 आ जाएगा. Succinate to FAD and malic acid to oxaloacetic acid. Malic to okay. NADH2 NAD and here to succinic acid or step. And then it will change into malic acid. And this step के अंदर FAD will change into FADH2. So this is the all very Krebs cycle. And now in Krebs cycle, what you will say, what you are getting is NADH2 here, you are getting NADH2 here, you are getting NADH2 here, you are getting NADH2 here, and FADH2 here, and a GDP molecule. GDP is nothing but it is equal to ATP. Adenosine triphosphate. This is guanosine triphosphate. Adenosine is one type of nitrogen base. Guanine is another type of nitrogen base. Okay? So this equal quantity number, its energy will be just equivalent to the ATP. So we can consider it as a ATP also. So in the Krebs cycle, only one ATP is formed in fact. Rest all these are in the form of NADs. And carbon is released in this step, carbon is released in this step because ये 6 carbon वाला है, ये 5 carbon में change हो रहा है यहाँ पे ketobutyric acid. So 1 carbon dioxide is released here and another carbon dioxide is released here. 5 carbon से 4 carbon में change. So ये दो जगहों पे तो आपके 3 carbon निकल गए, एक carbon यहाँ निकल गया, एक carbon यहाँ निकल गया, एक carbon यहाँ निकल गया. 3 carbon वाला compound हम लाए तो pyruvic acid, 3 carbon निकल गए. ठीक है? And its energy is used for production of what 1, 2, 3 and 4 NADH2 and 1 FADH2 and 1 GTP. ठीक है? So at the end of the Krebs cycle, we got these are the products. ठीक है? ATP तो कुल मिला के हमारे पास कितने बने? अभी तक अगर आपको याद हो, ATP कितने बने? हमने pyruvic acid क्या कहते हैं? Krebs cycle ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने ATP बनाए थे, कितने बने थे? 2 ATP. और अब दूसरे ATP का नाम है वो यही कर रहे हैं. बाकी कहीं पे भी हमने ATP का नाम नहीं लिखा है. So हमारा जो भी सब्सटेंस है एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर NAD और FAD. ठीक है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. हियर यू सी इन द ऑन द पेज नंबर
page number 233, figure number 14.4. This is electron transport chain. Now, just for the sake of understanding, मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोवेव क्रैक साइकिल होगा, where is this क्रैक साइकिल? This is very important to understand where the Krebs cycle is taking place. Krebs cycle takes place in mitochondria, where the glycolysis was taking place in cytoplasm. This oxidative decarboxylation was taking place in cytoplasm. ये जो process हो रहा है वो mitochondria में हो रहा है. कहाँ हो रहा है mitochondria? It is this is the mitochondria, and it has got its inner wall and outer wall. The process of Krebs cycle is taking place here. Krebs cycle is taking place here. So all the enzymes responsible for Krebs cycle are present here. ठीक है? अब इससे क्या हो जाएगा? At the end of the Krebs cycle, what you are getting is NADH2 and FADH2. खूब सारे इकट्ठे हो गया हमारे पास. खूब सारे NADH2 and खूब सारे FADH2. But body as a whole cannot use FADH2 or NADH2. Body क्या use करेगी? Body केवल ATP use करती है. हमने कल की क्लास में पढ़ा था एनर्जी करेंसी इज एटीपी नॉट एनर्जी और एफएडी और एनीथिंग एल्स. तो क्या करना है हमको? वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनर्जी और एफएडी इनटू एटीपी. ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करना है? देखिए यहां अगर आप ये चेन देखेंगे ईटीसी. ईटीसी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कहां पर हो रहा है ये? This is the difference between this is inner matrix and this is intermembrane space and this is inner membrane. You can see in the diagram में तीन जगह दिखा रखी है. सबसे राइट में मैट्रिक्स दिखा रखा है, तो ऊपर दे रखा है inner mitochondrial membrane और उसके बाद दे रखा है intermembrane space. Intermembrane space is this membrane का gap. This is inner membrane, that is one लिखा हुआ है mitochondrial inner membrane, and this is the matrix. So the process of Krebs cycle is taking place in the matrix, and in matrix what we got lot of FAD and NAD, FADH2 and NADH2. तो फिर क्या होता है? यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में क्या है? देखिए ये FMN मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको यहाँ पे. FMN के पास जैसे NADH2 आता है तो वो NADH2 को तोड़ देता है. It breaks the NADH2 and releases hydrogen ion and electron. So suppose this is a place. यहाँ पर हमारा FMN है. यहाँ जैसे NADH2 आया, this will be broken into NAD और इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे. Now hydrogen will be broken into hydrogen ions, 4 hydrogen ions and 4 electrons. Hydrogen will be broken into protons and electrons. Protons are hydrogen ions. हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा? प्रोटॉन ही बचा. न्यूट्रॉन तो भी. So we can even call them as a proton or we can call them as a hydrogen ion. So hydrogen ion अंदर भेज दिए in the intermembrane space, and electrons are now transferring through a series of electron acceptors. यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देख लीजिए आप. FMN के बाद FES के बाद गया, FES के बाद में यूबिक्विनोन के बाद गया, यूबिक्विनोन के बाद यूबिक्विनोन हाइड्रोजन के पास चला गया. Then again it has got that much of energy that it can take 2 more protons from here and through here. ठीक है, यहाँ पे 4 के काउंट्स में लिखे हैं, वैसे 2 के काउंट्स होते हैं. So 2 protons here, 2 more protons here, and 2 more protons it will be taking at the third place, that is the down. So मैं आपको ये पूरी चेन रटने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, और मैं इसको पूरा पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, what I have to concentrate is that is if we are using one molecule of NADH2, it can throw 3 pairs of protons into the intermembrane space. कहाँ फेंक रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है. ठीक है, FMN जैसे उसमें 1 पेयर फेंका, इसमें 2 पेयर बता रखे हैं, लेकिन वो एक्चुअली 1 पेयर होता है, उसमें दोनों मॉलिक्यूल को लेके करें. फिर उसके बाद साइटोक्रोम 3 जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स B के साथ में से उसमें 2 प्रोटॉन फेंके, और फिर जो तीसरे नंबर पे लिखा है वहां पे भी है ना. तो 3 जगहों पे इसमें 2 पेयर प्रोटॉन बाहर फेंके. अगर हम FADH2 यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग FADH2, so FADH2 can throw only 2 pair of protons, where the second one and the third one. First FMN वाला होने करें. ठीक है, so FADH2 can throw only 2 pairs of protons, whereas NADH2 can throw 3 pairs of protons. इतना याद रखिए, हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, when we use NADH2 it throws 3 pairs of hydrogen atom to the
intermembrane space. And when we are using FADH2, it creates two pairs of hydrogen ions to intermembrane space. As a result क्या होगा? As a result क्या होगा? इनमें एनर्जी है, इनमें एनर्जी का इसके इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी है, कोई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हम यूज करके प्रोटॉन्स को बाहर फेंकेंगे. As a result क्या होगा? यहाँ पे काफी सारे H ions इकट्ठे होंगे. There is a gradient created. There is lot of hydrogen ion here, and there is less hydrogen ion or no hydrogen ion inside. क्योंकि inside जो भी hydrogen ion थे वो सारे FAD और FADH के अंदर चले गए. So here there are lot of hydrogen ions now. ठीक है? बोलो. हाँ. वहाँ पे कोई भी नहीं है. अभी बड़ी मुश्किल से मैंने चेक करा सब कुछ है एक तो भी कोई. Okay, so क्या हो गया यहाँ पे? There are lot of hydrogen ions. Now when there are lot of hydrogen ions and there is less hydrogen ion inside, the gradient is created. So what will happen? The hydrogen ion will try to move inside, but the membrane is not permeable for hydrogen ion. Hydrogen ion के लिए membrane is not permeable. However, there are some F0F1 particles. If you have learned about the mitochondria, mitochondria has got F0F1 particles. Let us talk about the F0F1 particles. This is F0 and this is F1 particle. और ये हमारा क्या है? Intermembrane space है और यहाँ intermembrane space and ये हमारा membrane. So when one pair of hydrogen ion moves from here, only this is the side from where they can move in. This is the side from where they can move in. So when two protons move from here to here, there is enough of energy which can convert one ADP and phosphate into one ADP. ठीक है? इसको कहते हैं phosphorylation. That is ATP charging. तो कहां जब एक पेयर प्रोटॉन मतलब टू पेयर प्रोटॉन तो यहां तीन पेयर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया विच इज इक्वल टू 3 एटीपी एंड ये दो पेयर को फेंक रहा है तो इसका मतलब क्या है 2 एटीपी. सो इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट वन NAD can make 3 ATPs NADH2 and one FADH2 can make 2 ATPs. So that's the whole combination. Now ये सारे हाइड्रोजन आयन अंदर आ जाएंगे. हाइड्रोजन आयन अंदर आ गए. ये हाइड्रोजन आयन अब क्रैब साइकिल के अंदर फाइनल प्रोडक्ट चेंज करना है. इसमें these hydrogen ions will combine with oxygen and produce water molecules. ठीक है? So we have studied what are the total fate of carbon dioxide. Carbon dioxide को glycolysis में डाला, नीचे से pyruvic acid. Pyruvic acid को हमने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में लेकर के गए और वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड आया और एक NADH2 बना. ठीक है? फिर उसको हम एसिटाइल कोएंजाइम को क्रैब साइकिल में ले गए. हमारे पास में 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP बना. ठीक है? लेकिन उसमें कोई डायरेक्टली ATP नहीं बन रहा है. नो. और कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकले? 2. तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो पायरुविक एसिड में थे, वन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में बनने से निकल गया और 2 इधर निकल गए. कीटोग्लूटानिक एसिड टू सक्सिनाइल एंड citric acid to glutaric acid 6 से 5 कार्बन and 5 to 4 कार्बन हो गए. तो एक कार्बन निकल. तो कार्बन डाइऑक्साइड का किस्सा खत्म हो गया. अब बचा वाटर. तो वाटर यहाँ नहीं है. वाटर will be made here. Hydrogen ions will combine with oxygen. ठीक है? So the final product will be there, that is the glucose is added. It will change into carbon dioxide and water. Now the problem is we are talking about 36 ATP, 38 ATP. Some books say even 40 ATP. Where are those 36, 38 or 40 ATPs? तो उसका हिसाब किताब करना है. पहले कर देते हैं हिसाब किताब ऑफ ATP using one molecule of glucose. ठीक है? Accounting of ATP synthesis. Aerobic acid. देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ. ग्लाइकोलाइसिस. क्या बने इसके अंदर? 4 ATPs. खर्च कितने हो गए? 2 ATPs. नेट कितने हैं? 2 ATPs. और क्या बने थे? 2 NADH2. इसको अगर हम इस हिसाब से चलाते हैं तो 2 ATP
So we'll get 4 ATPs. Then decarboxylation ले लेते हो. What we got? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से काउंट कर रहे हैं तो 2 ही होंगे. तो NADH2 into 2 3 ATPs. और यहाँ पे मैंने लिखा है ये 3 ATPs. So your name is 6 ATPs. Then Krebs cycle. Krebs cycle में कितने बने हमारे पास 6 NADH2 into 3 18 2 FADH2 into 2 ATP, that is 4 ATP and 2 GPP which is equal to 1 ATP each. So हमारे पास क्या आ गया 2 ATP. So all together how much are there? 6 6 2 8 8 14 14 और 8 22 32 32 से 4 36 और 2 ठीक है. 38 ATPs आ गए हैं. 38 ATPs में से क्या होता है ना 2 ATPs जो है 2 ATPs जो है वो खर्च हो जाते हैं. ये NADH2 जो साइटोप्लाज्म में बने हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पुश करते हैं. These NADH2 were glycolysis was taking place in cytoplasm. From the cytoplasm they have to be brought into the mitochondria because all these changes are taking place in the mitochondria. तो इसमें 2 ATP खर्च हो जाते हैं. 2 ATP के बराबर तो आप -2 ATP कर दीजिए. So the net is 36. और अगर हम केवल प्रोडक्शन की बात करें कंजम्पशन की बात नहीं करें, एक मिनट सुनिए, आप केवल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप यहाँ 4 लिखेंगे फिर यहाँ 2 भी लिखेंगे तो ये टोटल 40 हो जाता है. तो हम कहेंगे 1 molecule of glucose can produce 40 ATPs, out of which 2 are spent in the glycolysis and 2 are spent in transferring the energy. So net will be 36 ATPs. ठीक है. So there are different books, there are different people who say सब 40 बनते हैं, कोई बोलता 38 बनते हैं, कोई बोलता 36 बनते हैं, but book says nothing is guaranteed. ठीक है. आप इसको नोट करिए देते हैं फिर हम बात करते हैं आगे. वीडियो मिल जाएगी आपको, मैं अपलोड कर दूंगा. हाँ देखिए just mobile anytime start recording in the mirror image. तो सीधा चलिए ये हो गया है ना. नाउ लेट अस रीड द अनदर पैराग्राफ व्हिच इज देयर है ना. मैं आता हूं शेयर स्क्रीन एंड दिस वाज द स्क्रीन व्हिच यू आर शेयरिंग. सो हियर देखिए आप ये क्या लिखा है, दैट इज द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट की अकाउंटिंग के लिए बैलेंस शीट कर. अब ये क्या लिख रहा है, इट इज पॉसिबल टू मेक ए कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये कर सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. वी हैव टू फॉलो सर्टेन कंडीशन, वी हैव टू कीप सर्टेन कंडीशंस इन माइंड. इसको लिखा है यहाँ assumption. क्या है assumption? देखिए assumption नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है. assumption number 1, there is a sequential orderly pathway of functioning. जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कल से मैं बार-बार एक ही बात बता रहा हूँ. ग्लूकोज डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. अगर ये प्रोसेस इस ऑर्डर में चल रहा है, कैसे ग्लूकोज डालेंगे पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में, फिर पायरुवेट एसिड बनेगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, देन इट विल गो अंडर द क्रैब साइकिल एंड देन इट विल गो टू द ETC एंड देन इट विल चेंज इनटू फॉस्फोराइलेशन. अगर ये सारा कुछ ऑर्डरली फैशन में चल रहा है तो ये बनेगा गारंटेड. बट
बॉडी तो बॉडी है ना, बॉडी तो बॉडी है, तो ये बॉडी में क्या है, एनी टाइम बॉडी कैन स्टॉप एनी प्रोसेस एनीवेयर. It may be possible that the pyruvic acid बना है and the further process of aerobic respiration हुआ है कि उसकी जगह उसने anaerobic respiration कर लिया और lactic acid बना दिया. Or it may be possible that the beta-glutamic acid or succinyl-CoA9 or malic acid or oxalic acid or any other thing, citric acid, किसी भी चीज को बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो बॉडी को उसको विड्रॉ करेगी. और दुकानदार होता है गल्ला के लेके बैठता है, सुबह कुछ पैसे लेके आता है घर से, मे बी 2000-5000 रुपए, ताकि किसी को कुछ मांगने वाला है या कोई सामान खरीदना हो. उसके बाद अब दिन भर में जो पैसा होगा उसी को रोटेट करता रहता है ना. ये थोड़ी कि जो पैसा आया है उसको अलग रखेगा, जो पैसा घर से लाया उसको अलग रखेगा, जो देना है वो अलग रखेगा, ऐसा थोड़ी. वो जो पैसा आया 500 रुपया, मान लीजिए किसी ने 500 रुपए का सामान खरीदा और किसी दूसरा कुरकुरे वाला आगे बोला साहब आपका 200 का बिल हुआ, तो उसी में से निकाल के देगा, है ना. सो देयर इज नो जैसे, तो आवर बॉडी इज आल्सो डूइंग नथिंग, वो प्रोसेस शुरू करा एंड इन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट कैन बी यूज होना है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लिसराइड फॉस्फेट की जरूरत पड़ गई तो वहीं से निकालते हो, ग्लाइकोलाइसिस भी पूरा नहीं हो रहा और उसको बीटा-ग्लूटानिक एसिड की जरूरत पड़ी और इट रिक्वायर्ड सम अदर प्रोडक्ट, तो द प्रोसेस विल बी डिसकंटिन्यूड एनीवेयर. तो ये लिखा है इफ इट गोज इनटू ऑर्डरली फैशन एंड फिनिश इनटू द लास्ट प्रोडक्ट देन ओनली दिस विल बी 36 ATP का चक्कर जो है. अदरवाइज क्या होगा, देखिए द एनएडी, दूसरी बात क्या है, द एनएडी सिंथेसाइज्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस आर ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर व्हिच 2 ATPs आर रिक्वायर्ड. जनरली वो नहीं होते, जनरली वो वही यूज हो जाते हैं, ठीक है. तो अगर वो होंगे तभी वो 6 ATP का और बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो 30 रह जाएंगे, है ना. ये वाले जो है ये 6 ATP तो तब आएंगे when these NADH2 which are formed are transferred into the mitochondria, ठीक है. तीसरा क्या लिखा है, none of the intermediate pathway are synthesized anywhere else, ठीक है, कुछ और चीज के लिए काम नहीं किया उसने. चौथा, ग्लूकोज इज ओनली बीइंग यूज्ड विद रेस्पिरेशन में सब्सट्रेट तो कर लेंगे, ठीक. ग्लूकोज की जगह हम कुछ और चीज भी यूज कर सकते हैं, हम तो एमिनो एसिड भी यूज कर सकते हैं, फैटी एसिड भी यूज कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज दिस इज द थिंग, इफ यू यूज फैटी एसिड प्रोडक्ट विल बी समथिंग एल्स, ठीक है. तो ये आ गया आपको समझ में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेशन अजम्पशन. We cannot always guarantee that 38-36 ATP will only produce. और अगर ऐसा होने लग जाता ना तो इंसान क्या होता ना, गोलियां नाप करके मॉलिक्यूल दे, यहाँ पे इसको मॉलिक्यूल दे दीजिए, आज जिंदा रह लेंगे. But it is not so. Our body has so many different type of activities going on and so many different type of substances are required. ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट आ गया आपका. अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक. Let us compare the functioning, fermentation and anaerobic respiration. ये मैं करा चुका हूँ कल. Fermentation आप जानते हैं, तीनों का डिफरेंस मैंने आपको छोटी क्लास में भी कराया, फिर भी पढ़ लेंगे अगर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है, ठीक है. लास्ट टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे. क्या होता है एम्फीबॉलिक पाथवे? हमने मेटाबॉलिज्म हमेशा पढ़ा, देयर मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. Catabolism means the large molecule is broken into the smaller molecule. Anabolism is the smaller molecule combined to make complex molecule. Now, right from the childhood, मैंने आपको बिगनिंग में भी कहा, ये चैप्टर पढ़ाते समय अगर कल का वीडियो आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा कि आपने आज तक रेस्पिरेशन के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है उसको रोल करके थ्रो कर दीजिए डस्टबिन में. Because we are taught all wrong. We are always taught that respiration is a catabolic pathway in which the glucose is broken into carbon dioxide and water. हाँ, कौन सी गारंटी है कि भैया glucose will always finish in carbon dioxide and water? Glucose can, any intermediate is made and that intermediate can be again used in synthesis of a more complex molecule. तो हमने इसको एम्फीबॉलिक का, एम्फी क्या होता है, एम्फी मतलब टू, बॉलिक मतलब यहाँ रिएक्शंस है. तो दो तरह की रिएक्शंस हो सकती है, वो कैटाबॉलिक भी हो सकती है, वो एनाबॉलिक भी हो सकती है. We cannot guarantee that respiration will always be a catabolic process. It can be catabolic or it can be anabolic or it can be both, and that type of processes are called amphibolic. आप देखते हैं अगले पेज में, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे. अगर आप अलग अलग तरह का सब्सटेंस यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कैन बी फैट, इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट और इट कैन बी प्रोटीन. तो कार्बोहाइड्रेट वाला तो हमने पढ़ लिया, ग्लूकोज वाला बीच वाला, ठीक है. वेयर द कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज, तो ग्लूकोज लेंगे तो ग्लूकोज विल चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोएसिटोन फॉस्फेट, finally pyruvic acid. Pyruvic acid will go into the Krebs cycle in the acetyl coenzyme and dash करके, ठीक है. This we have studied so far. Now, had we used fat,
तो फिर हमारी गिनती कैसे होती? फैट यूज करते तो फैट वुड हैव ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड फैटी एसिड विल वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। सो वो जो पूरे प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का वो फिनिश हो गया, बाईपास हो गया। The entire process of glycolysis is bypassed here and the fats are taking entry from acetyl coenzyme, whereas if we take amino acid they will take entry from pyruvic acid. Okay, so that is why they will not be as efficient the glucose is, and that is why body prefer to use glucose. वो बॉडी ग्लूकोज को प्रेफर करती है, क्यों? क्योंकि अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, मैं आपको 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख करके बताता हूँ। अगर ये हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या है, 6 कार्बन है, तो उसके बदले में हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितने, 6। अगर मैं 6 कार्बन वाला कोई एसिड बनाता हूँ तो ये हो जाएगा C5H11COOH। तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ओनली 2। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 6। अगर मैं फैटी एसिड लेता हूँ, एमिनो एसिड लेता हूँ, तो एमिनो एसिड ले सकता हूँ, एक सेंट्रल कार्बन रहेगा, एक COOH रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक NH2 रहेगा। NH2 का एनर्जी देने वाला नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, तो क्योंकि हमको टोटल 1 और 2 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन होना है, तो C4H8 में यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे C4H8 ऐसा कोई एमिनो एसिड नहीं होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कह रहे हैं। तो इसकी इतने सारे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही, ठीक है। So the efficiency of this and efficiency of this will be less in compared to the efficiency of glucose to be oxidized, and that is why most commonly body is depending on however energy will be produced more if you are using fatty acid, क्योंकि उसके अंदर बर्न होने वाली चीज कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है, डिपेंडिंग दैट यू हैव टू टेक मोर एंड मोर ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, जो कि जनरली हो नहीं पाता। देन क्या होता है, बॉडी विल चेंज इनटू मतलब स्विच ओवर टू द एनारोबिक प्रोसेस एंड देन इट विल लीड टू द सम अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है। और दूसरी बात क्या देख रहे हो आप, ये ग्लाइकोलाइसिस, ये जो 3 स्टेप अपने पढ़े हैं, इसको उल्टा भी कर सकता है। बॉडी के जितनी भी प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर, रिवर्स कैन आल्सो गो। तो यहाँ पे क्या है, सपोज बॉडी नीडेड फैट, जो कि जनरली होता है, हमने अक्सर लेडीज को सुना है, आप किसी को चाय बना के शक्कर मत डालना बेटा, क्यों? नहीं मतलब नहीं बेटा, वो डॉक्टर ने मना किया, डायबिटीज नहीं होगी तब भी नहीं खा रहे, क्यों नहीं आ रहे? उनको डायरेक्ट फैट हो जाएगा, चर्बी जम जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग आइसक्रीम नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग मीठा नहीं खाते, तो वो क्यों नहीं खा रहे? देखिए जो प्रोसेस क्या कह रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं, वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में चेंज इनटू डाइल फाइनली किसमें चेंज हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम, एंड इफ बॉडी डजंट रिक्वायर दैट मच ऑफ ग्लूकोज, then body may change this glucose into fat। ये प्रोसेस को उल्टा चला देगी और फैटी एसिड और फैट, और वो जाके जम्मू पे जम जाएगा, वो जाके कमर में जम जाएगा, वो हमारे चेस्ट में जम जाएगा, हमारे थाई में, यहाँ पे, हाथों में, सब जगह जमेगा, ठीक है। सो बॉडी में एनी टाइम स्विच ओवर देनी, तो पायरुविक एसिड से वो प्रोटीन बना सकता है, एमिनो एसिड बना सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम कैन बी यूज्ड। सो बॉडी, we cannot guarantee that the process starting from glucose will always end up into carbon dioxide bond, as we studied right from till last period। आपने लास्ट पीरियड तक में आपके दिमाग में यही था कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक। अभी हम कह रहे हैं कैटाबोलिक तो नहीं समझे, क्यों? क्योंकि दैट एसिटाइल कोएंजाइम और पायरुविक एसिड कैन एनी टाइम मे बी यूज्ड इन मेकिंग कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, ठीक है। ये तो 2-3 चीज दिखा रखी है मुख्य, देयर मे बी मेनी अदर प्रोडक्ट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो यहाँ सिंथेसिस ब्रेकडाउन रिएक्शन हो सकती है, सिंथेसिस रिएक्शन भी हो सकती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटीबॉलिक पाथवे। इज इट क्लियर? आपको बात समझ आ गई? मैंने आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली बताई है। इससे पहले वाली चीज मैंने आपको अकाउंटिंग बताई कि व्हाई इट इज, एजम्पशन रखने पड़ेंगे हम आपको कई सारे, अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट, एजम्पशन इज इंपॉर्टेंट, एंटीबॉलिक पाथवे इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ गया हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या कहता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो किस चीज को बता रहा है कि हाउ मच ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। सो RQ is the ratio of carbon dioxide evolved is to oxygen consumed. So for glucose it is 1. अगर आप ग्लूकोज ले रहे हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 6 ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो it will be 1।
R cube for glucose is 6 CO2 upon 6 O2. So ये करके 1. But if you take fat लेंगे तो क्या होगा? The oxygen required is so high, then carbon dioxide produced is very low. तो reaction देखिए, हाँ, 145 and 120. So it has gone below, that is below 1, that is 0.7. और अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, if we talk about the anaerobic respiration, तो anaerobic respiration में क्या है? R कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रोड्यूस 2, बट ऑक्सीजन यूज 0. anaerobic respiration ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, ठीक है? सो इन दैट केस इट गो टू इनफिनिटी, ठीक है? सो इट इज जस्ट फॉर द सेक वो बड़े होते हैं ना डेटा वाले, है ना? हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, दूसरा काउंटिंग कर रहा है कि यार इसने रिकॉर्ड बना दिया, तो रिकॉर्ड का देखना, मैच देखना, मुझे वो वाले तो रेस्पिरेशन भी वो जो है उसमें बीटा बीटा लिया है, तो वो लोग ये इस तरह का काम करते हैं, ठीक है? तो आपको ये समझ आ गया, हमारी चैप्टर इज ओवर नाउ. आज के लिए एक काम है, दैट इज यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक, एनारोबिक एंड फर्मेंटेशन, जो हमने 10th क्लास में करी थी, आपके पास नोट्स में पढ़े हुए थे, ठीक है? और नहीं तो मेरी 10th की वीडियो में आपको मिल भी जाएंगे. Okay, so that's all. This chapter is over. Tomorrow I'll start with photosynthesis and अभी जल्दी खत्म करेंगे, है ना? क्योंकि अब तो हम सोचते हैं कि आप क्लास 11th में अब आप मैच्योर्ड है, अनलाइक क्लास 10 जहाँ एक चीजें आपको स्कूल में फिट करनी पड़ती है. Okay, that's good, children. Your problems are always welcome. Anytime you can ask. हाँ.